میرا خیال ہے 517ویں بار اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش ہوئے اور 49 کیسز تھے، ایک میں بریت ہو گئی، اب 48 رہ گئے ہیں۔ اور سوال یہ ہے، یہاں پہ آج عمر ایوب صاحب کی پیشی تھی، اعظم سواتی صاحب کی پیشی تھی، پی ٹی آئی کے کارکنوں کی پیشی تھی، تو کیا یہ ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ اگر یہ سارے ہم یہاں پہ جو کیسز بھگت رہے ہیں دہشت گردی کی عدالت میں، تو کیا ہم سارے دہشت گرد ہیں؟ اور اگر ہم سارے دہشت گرد ہیں تو کیا پاکستان کے لوگ دہشت گردوں کو الیکٹ کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو ووٹ کر رہے ہیں؟ دوسری طرف ہمارے تو دو المیے ہیں، ایک طرف دیکھیں ہمیں حکومت نے جعلی مقدموں میں پھنسایا ہوا ہے، 48 کیسوں میں ہم روز عدالتوں میں ہی ہوتے ہیں، ہمارا سارا مہینے کا صبح کا جو شیڈیول ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ آج ہم نے اس عدالت میں جانا ہے، دوسری میں جانا ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا صبح، وہ کوئی کے پی ہاؤس میں بیٹھا کافی پی رہا ہے، کوئی ادھر پی رہا ہے۔ بھئی تمہاری ساری جو کارکن ہیں، لوگ ہیں، وہ آپ کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، آپ سارے جو ہیں وہ سارے سی ایم ہاؤس کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کیا لیڈرشپ دے رہے ہیں پاکستان میں اس وقت؟ ایک ہمارے جو نئے صاحب آئے ہیں سیکرٹری جنرل صاحب، جن کو کہتے ہیں سیکرٹری جنرل الیکٹڈ آفس ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ سیکرٹری جنرل خود کو کیوں کہہ رہے ہیں۔ سلمان راجہ صاحب 1970 کے زمانے کا جیل لگا کے اپنے آپ کو ڈان کارلیونے سمجھ رہے ہیں، گاڈ فادر کے، بالکل احمقوں کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کی پوری لیڈرشپ کے اوپر کیسز ہیں کرمنل، بجائے اس کے کہ آپ ان عدالتوں میں ساتھ پیش ہوں، ورکرز کے ساتھ پیش ہوں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں جیل لگا کے 2 بجے جی ہم نے کرنا، اور پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی ورکرز کی گرفتاری ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیڈرشپ تو نہیں گرفتار ہو سکتی، لیڈرشپ گرفتار ہو گئی تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے مذاکرات کون کرے گا؟ ان سارے یہ جو پریزنٹ لیڈرشپ ہے، اس میں سوائے یہ کہ یہ کوئی صبح اٹھ کے جیل لگا کے بالوں بھی اتنے بڑے بڑے رکھے ہوئے ہیں سب نے، جیسے پتہ نہیں یہ کوئی ٹی ٹی پی کے نمائندے ہیں، یہ ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا۔ وہ مہذب بندہ ہوتا ہے، جس آدمی کا آپ اندازہ لگائیں کہ 2024 میں جس آدمی کا لینن جو ہے وہ لیڈر ہے، کمیونسٹ جو 1970 میں بھی کوئی بات ہو نا، کوئی لینن کا لیڈر ہو تو بندہ سمجھتا بھی ہے، تو 2024 میں جو آدمی لینن کو اپنا لیڈر مانتا ہے اس کی کتنی قتل ہوگی، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ پوری پارٹی جو ہے اس کو انہوں نے ڈس ارے میں ڈال دیا ہے۔ روزانہ صبح اٹھیں گے جیل شیل لگا کے کافی شافی پی کے اور اپنا کہیں گے یہ آج سارے کارکن نکل آئیں اور جی 4 بجے فلانی جگہ پہنچ جائیں، پھر 4 بجے کہیں گے نہیں جگہ بدل لیتے ہیں اب 6 بجے پہنچ جائیں۔ یہ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ لوگ مر گئے ہیں، پرچے ہو کہ لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ 1000 آدمی اس وقت جو ہے وہ جیل میں تھا، جس میں عمران خان کی بہنیں شامل ہوئیں۔ آپ کا لاہور میں کوٹ لکھپت جیل بھر گئی ہے، آپ کی کیمپ جیل بھر گئی ہے، پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں تحریک انصاف کے لوگوں سے، اور یہ سارے بس جیل شیل لگا کے اٹھ کے کافی شافی پی کے کہہ دیتے ہیں جی فلانی جگہ آ جاؤ۔ نہ کوئی آپ کی اسٹریٹجی ہے، نہ آپ کا کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، اور ہم سارے لوگوں کو یہاں دھکے میں لگوایا ہوا ہے۔ پورے پاکستان میں اس وقت میرا پورا خاندان ای سی ایل کے اوپر ہے، ہم غدار ہیں اور ماشاءاللہ سارے ای سی ایل کے اوپر ہیں، سارے کیس بھی بھگت رہے ہیں، 7 مہینے جیل بھی بھگت لی، بدترین تشدد بھی ہو گیا، اور یہ لوگ سارے جو ہیں وہ ان کی عیاشی لگی ہوئی ہے۔ پہلے کہتے ہیں عمران خان کا فیصلہ ہے، خان صاحب کے فیصلے سار آنکھوں کے اوپر ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں، اندر جیل میں ان کو پتہ ہی نہیں جا رہا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلے میں سوچ رہا تھا وہ کہ گلشن کی بربادی کو ایک ہی بزدار کافی تھا، ہر شاخ پہ بزدار بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ میں تو یہ سوچ رہا ہوں۔ جلسے کرنے ہیں جی، وہ ایک کہہ رہے ہیں کراچی کر لیتے ہیں، ایک پشاور کر لیں، کوئٹہ کر لیں، تو میں نے کہا آپ ایک جبوتی کر لیں، ایک کوئی کینیا میں کر لیں، اگر اتنے محفوظ ہی کرنے ہیں تو۔ 450 دن ہو گئے ہیں عمران خان کو جیل میں، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے عمران خان کو جیل سے باہر میں لانے کی۔ ہمارا لیڈر عمران خان ہے، ہم تو نہیں جانتے باقی کسی کو۔ عمران خان کہہ دے ہمیں شٹ اپ کہہ دے، ہم چپ ہو جائیں گے، لیکن اس کی رہائی کی بات تو کوئی کرے نہ، اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہے، نہ کوئی سیاسی حکمت عملی ہے، بس فلانے کو بھی نوٹس دے دو، فلانے کو بھی۔
4 दिन पहले सारे बता रहे थे कि जनाब इनके ऊपर जुल्म हुआ, MNAs के ऊपर इनके बच्चे उठाए गए, और हुआ भी। सारी क्वेश्चन छोड़ के उनको नोटिस दी जा रहे हैं, आपको निकाल देंगे हम। आप एक बात पे रहें, या इन्होंने पैसे लिए हैं या इनके ऊपर जुल्म हुआ है, समझ ही नहीं है। बच्चों जैसी जो है खिलंडरे लोगों के हाथ में पार्टी है। मेरी तो ये गुजारिश है, और ये रोज ऊपर से ये कह देते हैं आके, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन साहब वो भी बैठे हुए हैं वहाँ पे KP CM हाउस में, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जी वो बुशरा बीबी को सियासत में नहीं आ सकती जी, हलीमा खान सियासत में नहीं आ सकती। भाई और कौन आएगा? जिनका खावन मेरे खुद अपने साथ जो हुआ 7 महीने, पार्टी कितनी निकली है, सिर्फ खानदान ही खड़ा हुआ ना। आखिर में खानदान नहीं खड़ा होना होता है। 100% बुशरा बीबी और हलीमा खान से मैं अपील करता हूँ, आप बिल्कुल जो है वो सियासत में भी आएँ, वो आप इस पार्टी को क़यादत भी दें, और आके इमरान खान को बाहर निकालने की हिकमत अमली बनाएं। ये इन खिलंडरों के हाथ में ना पार्टी छोड़ दें, इनसे कुछ नहीं होना, और नहीं हुआ। 450 दिन से इमरान खान अंदर है और पाकिस्तान डूब रहा है। इमरान खान को जब अंदर है, पाकिस्तान की सियासत में ठहराव नहीं है, तो नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। IMF का इन्होंने पहले ये अपनी 26वीं तरमीम लेके आए हैं, इन्होंने कहा 26वीं तरमीम से बड़ा जनाब हम हैंडल कर देंगे। अब कल से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने रोना मचाया हुआ है कि जी वो जज इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। भाई क्यों दें इस्तीफा? सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन्होंने अपना किरदार रखना है, वो क्यों आपको आपके कहने के ऊपर इस्तीफा दें? और सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी। ये भी नून लीग की, पीपल्स पार्टी की इनकी गलत फहमी है कि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है तो पता नहीं हमने क्या तीर मार दिया है। ये जुडिशरी वापस खड़ी होगी, और ये मुमकिन ही नहीं है। आप जुडिशरी का गला काट रहे हैं और आप क्या समझ रहे हैं आगे से रेजिस्टेंस नहीं होगी? आगे से रेजिस्टेंस होगी, और ये आपको नजर आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्याल में ये जो 27वीं आईनी तरमीम लाने की अब बातें हो रही हैं, ये घबराहट की बातें हैं। 26वीं आईनी तरमीम से आप समझते हैं कि आप ये जजों को डराने पे आ गए हैं कि जी अगर आप 26वीं पे नहीं मानेंगे ना तो हम आपका और गला दबा देंगे, हम आपकी 27वीं आईनी तरमीम ले आएंगे। ये आईनी तरमीम है या कोई अपना चूरन का डब्बा है? हर रोज जनाब एक नया चूरन, आज 26वीं आईनी तरमीम कर लो, आज 27वीं कर लो, तो फिर आप इकट्ठा ही यहाँ पे कोई और काम कर लें। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क में लोगों की तबाही हो गई है। वर्किंग क्लास जो है, सैलरीड क्लास जो है, उसकी कमर टूट गई है। हमारे तेल बिजली के पैसे देना मुश्किल हो गया है। साहब महीने की बिजली देना, रोज हमें बताते हैं स्टॉक मार्केट आज 87,000 के ऊपर चली गई। वो भाई सीधी बताओ कि 2017 में भी $40 बिलियन के ऊपर थी, आज भी $40 बिलियन की टोटल उसकी वैलिड है। क्या बढ़ गई है? ऐसे झूठ के ऊपर मुल्क नहीं चलता। और बस इस वक्त मेरे नज़र में इमरान खान को बाहर लाने के लिए वाहिद स्ट्रेटजी PTI की यही है, बुशरा बीबी और हलीमा खान आगे आए और वो पार्टी को क़यादत फराहम। आप जिन लोगों पे तनकीद कर रहे हैं, आप जिन पे तनकीद कर रहे हैं, वो और अवाम ये समझती है कि आपने मुश्किल वक्त में इमरान खान का तब साथ छोड़ा, आप उनको क्लैरिफाई कैसे करेंगे कि आपने साथ नहीं छोड़ा? आप पहली बात यह है कि मुझे क्या मुश्किल वक्त खत्म हो गया? मुश्किल वक्त तो आई हम पे है, जिन पे मुश्किल वक्त नहीं आया उन पे तो आया ही नहीं है। हम पे मुश्किल वक्त है, वो अभी भी जारी है। मैं ECL पे हूँ, मेरे भाई ECL के ऊपर हैं, 48 केसेस हम भुगत रहे हैं, पता नहीं कब हम दोबारा जेल चले जाएं। मुश्किल वक्त तो हम पे ही था और हम ही उससे गुजर रहे हैं। ये जो कोई बंदे जो कहते हैं ना कि जी मुश्किल वक्त में, तो मुश्किल वक्त उनके ऊपर तो आया ही नहीं। शोएब शाहीन पे कौन सा मुश्किल वक्त आया, या सलमान अकरम राजा पे कौन सा मुश्किल वक्त आया है? रऊफ हसन के ऊपर 7 दिन मुश्किल वक्त आया है। बाकी किसके ऊपर मुश्किल वक्त आया है? वो तो सारे अभी KP जेल में, KP के CM हाउस में बैठे कॉफियाँ पी रहे हैं। तो ये ऐसे बकवास है, ये लोगों को ऐसे अहमकाना। और मुश्किल वक्त इन वर्कर्स के ऊपर है जो सारे बेचारे 18। एजाज चौधरी के ऊपर मुश्किल वक्त है। मुझे आप बताएं, एजाज चौधरी साहब जेल में हैं, कभी को मिलने भी गए उनसे कि ये आप बताइए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है? महमूद रशीद से मिलने भी गए कोई? यास्मीन राशिद से मिलने भी गए हैं? उमर चीमा, अपना ये शाह महमूद कुरैशी, इनकी ओपिनियन कोई मैटर नहीं करती पार्टी में। ये लोग जो हैं, मेरी गुजारिश यही है, आरफ अलवी साहब है, असद कैसर साहब है, आप मेहरबानी करें पार्टी पे। इमरान खान तो जेल में, उनको जो ये बताएंगे जाके उसके मुताबिक फैसले करेंगे, और ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप मेहरबानी करें, आप आगे आएँ, बुशरा बीबी और हलीमा खान को साथ लें और आप लीडरशिप दें। आप लोग घरों में बैठ गए हैं जाके। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी को पंजाब में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पंजाब में तो वैसे भुगतान है, तो वो दिल्ली में चली गई है, तो पंजाब
खिलाफ कौन क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? लीड तो कहीं से भी हो सकता है, जब वो फैसला तो करें ना। ये रोज आके कह देते हैं जी वो सियासत में नहीं आएंगी जी, उनको आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? 450 दिन उनके खामद हो गए, इमरान खान जेल में है, तो बुशरा भी नहीं लड़ेंगी तो कौन लड़ेगा? जो फार्मर ब्लॉक की बातें हो रही है इस वाले से फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या हैसियत है यार? ये जो सारे लोग इमरान खान के नाम के ऊपर इकोनॉमी इन्होंने बनाई हुई है, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या हैसियत है? कोई हैसियत? सिंपल सा सवाल है, क्या आप पीटीआई की लीडरशिप पर तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि आप दोबारा रेलिवेंट हो सकते? मैं हूँ ही रेलिवेंट, मेरे से ज्यादा रेलिवेंट कौन है? मैं रेलिवेंट कब हुआ हूँ? मैं तो सबसे ज्यादा, मुझे क्या प्रॉब्लम है यार? टीवी पे आना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम है? इस पे आना क्या प्रॉब्लम है? मैं, मेरे से ज्यादा रेलिवेंट कौन है? और ये तनकीद भी होती रहती है, तारीफ भी होती रहती है। मैं अपने व्यूज नहीं बदलता, मेरे एक्सट्रीमिस्ट पे व्यूज वही हैं, मेरे पार्टी के ऊपर व्यूज वही हैं मेरे। मैं इस पे नहीं आता कि फलाने ने तनकीद कर दिया, फलाने ने नहीं कर। जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है वो बार बार आपके तरले में सीनियर कौन सी है? वो जो दो चार जो बैठे हुए हैं वो कहते तरले करते हैं, आपने जो ऐसा बात बना रखे हैं, हम मजलूम हैं, जालिम पर बात करें, आप हमें तनकीद खाना बनाते जाते हैं। ओहो, तो जालिम के तो हम जुल्म सह रहे हैं ना, जालिम पे क्या बात करें? जुल्म ही हम पे हो रहे हैं, हम ही सब सह रहे। और जो जुल्म कर रहे हैं उन पे बात करें आप। वो तो उनके ऊपर रोज हम ही बात करते हैं, हम क्यों 7 महीने जेल में रहे हैं? जुल्म पे बात करने में जेल में रहे हैं ना। बहरहाल इशू ये है कि देखें, हमें लीडरशिप की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल में इस वक्त जिस तरह मैंने कहा, डॉक्टर आरिफ अलवी, असद कैसर, बुशरा बीबी, अलीमा खान, ये आगे बढ़े और पार्टी को लीडरशिप दें और इन खिलंडरों से हमारी जान छुड़वाएं।